I hope you are good. Today I want to give a moral that you have note to first page of your copy with the index. You have also complete your index, okay? And one most important thing that you will have to give the attendance your respective class teacher. All of the students have given the attendance to your respective class teacher. All class teacher will be checked to it on the Sunday. Okay? From the today my moral is the two words faith and impossible. Faith and impossible, the two words can never go together. अगर आप it means if you believe on that you can do it. If you believe on that you can do it, then necessarily you will do it. But if you will in doubt that could you do it or not, then maybe you can do it or not. But if you will believe on that you can do it, necessarily you will do it. As like similar in the questions of math. If you believe that you can solve all questions, then you will all absolutely solve. But if you have doubt, then maybe you can solve. Okay, so believe on that you can do it. Today I start with the exercise 1.1. The chapter will be cover the topic natural number, whole number, integers and directed number of integers. You have to understand this point very carefully. All these points you have understood in the previous class. Natural number, as you know that the all counting numbers that start from 1 and goes to the infinite is known as natural number, and the whole number that starts from the 0 and goes to the infinite is known as natural number. Is known as whole number, and the symbol of whole number is W. The integers have two types. One is negative and one is positive, and the symbol of integers is Z. What is the symbol of integers? Z. Okay? This is know you very well. I am explained to you by a diagram. This is the diagram. Suppose that it is a natural number. What is this? Natural number. Okay? Natural number means in this circle all will be counting numbers from the 1. If we write after the natural number W, it means all natural number are whole number, but not all whole number are natural number. Okay, but you will write when Z, since that all whole numbers are integers, but not all integers are whole number. Understand? Okay. Your next topic is directed number. Your next topic is directed number of integers. I make a figure for to you understand this. A B C D E. What? A B C D E. बेटा यहाँ पे जो आपका पॉइंट स्टार्ट हो रहा है डायरेक्टेड नंबर ऑफ इंटीजर्स, इसको समझने के लिए आपको बेटा दो चीज़ ज़रूरी है समझना. टू डिस्क्राइब अ लोकेशन. ठीक है, to describe a location like A location of B, location of C. To describe a location along with the distance and direction is important too. Means आपको अगर किसी भी पॉइंट का क्या समझना है, लोकेशन समझना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ जानना है. क्या जानना है? एक तो डिस्टेंस और दूसरी आपकी क्या है? डायरेक्शन. अगर आपको किसी का भी लोकेशन जानना है तो उसके लिए आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन ये दो बातें जाननी है. जैसे यहाँ देखो ए है, ठीक. अब ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? पहला पॉइंट क्या आया? डिस्टेंस. क्या आया? डिस्टेंस. और ए के रिस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन कौन सी है? ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन कौन सी है? तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया? डायरेक्शन. ठीक. तो बेटा डिस्टेंस तो आपको पता है, डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? काउंटिंग नंबर से. और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस और माइनस से. ठीक. तो बेटा आपको क्या क्या मिला? डायरेक्शन और डिस्टेंस, दोनों बातें समझते. डिस्टेंस समझना होगा तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव से समझेंगे. ठीक है. पॉजिटिव क्या बताएगा? पॉजिटिव टेल्स अस दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड नेगेटिव टेल्स अस दैट वी आर गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. ठीक है. पॉजिटिव से क्या पता चलता है बेटा? हम किसी भी लोकेशन की किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? राइट में. और नेगेटिव से क्या पता चलेगा? किसी भी लोकेशन की किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? लेफ्ट में. ठीक है. सपोज दैट यू हैव टू रेफरेंस. इसमें बेटा एक पॉइंट हम बना लेते हैं रेफरेंस पॉइंट. कौन सा पॉइंट?
रेफरेंस पॉइंट। एक पॉइंट इसमें हम बनाएंगे, कौन सा पॉइंट होगा वो रेफरेंस पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में हमें सब कुछ लेफ्ट राइट आना जाना होगा। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है इसमें व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ई, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ई विद रेफरेंस ऑफ पॉइंट डी, तो आप क्या कहेंगे 50 मीटर। कितना मीटर 50 मीटर। प्लस और माइनस यू आर गोइंग टू द राइट साइड, सो द साइन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, आप किधर जा रहे हो, राइट में जा रहे हो, तो इसलिए इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। समझ में आया, रेफरेंस पॉइंट समझ में आया। अब आपको एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप देखो, तो देखो बच्चों, ये आपका उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का, इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1। ओके, इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इट इज़ द हाइट इन मीटर्स। ये आपको क्या गिवन है बेटा, हाइट किसमें गिवन है, मीटर्स में। इट इज़ द हाइट गिवन इन मीटर्स ऑफ सम माउंटेन पीक। कुछ माउंटेन पीक की हाइट गिवन है। देखो जैसे ये एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8848। कंचनजंगा की हाइट कितनी है 8598। K2 की हाइट कितनी है 8611। ठीक है, जहाँ पे आपको हाइट गिवन है। क्वेश्चन इज सेइंग हायर देन पॉजिटिव एंड शॉर्टर देन नेगेटिव साइंस। ठीक है, इसमें जो बड़ा दो नंबर्स में आपको लेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, पॉजिटिव से, और स्मॉल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव से। तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज सेइंग द क्वेश्चन नंबर 1, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। व्हाट यू सेल इन दिस क्वेश्चन, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये यू आर सेइंग दिस हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट बतानी है किसके रिस्पेक्ट में। इफ द हाइट ऑफ K2 इज 0 पॉइंट, वेयर इज K2, दिस इज K2। व्हाट इज सेइंग, इफ द हाइट ऑफ K2 इज 0 पॉइंट, मीन्स ये आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट। ये आपका कौन सा पॉइंट है बेटा, ये आपका है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, K2 की हाइट कितनी है 8611। व्हाट इज द हाइट ऑफ K2, 8। बेटा आपको रेफरेंस पॉइंट पता चल गया ना। या देखो यहाँ से, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ से इसके और इसके बीच की हाइट आपको बतानी है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट मतलब इसके रिस्पेक्ट में आप किधर जा रहे हो, राइट जाओगे तो पॉजिटिव बताओगे, लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, दो डिजिट है आपके पास 8611 और 8848। ठीक है, दोनों में ग्रेटर कौन है, कौन ग्रेटर है, K2 या एवरेस्ट। किसकी हाइट ज़्यादा है, आपने देखा एवरेस्ट की हाइट ज़्यादा है। क्वेश्चन ने कहा जिसकी हाइट ज़्यादा है उसके आगे क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इसके आगे क्या यूज़ कर लिया आपने, पॉजिटिव, और इसके आगे क्या यूज़ कर लिया, नेगेटिव। ठीक, तो आपको पता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाट विल गिव नेगेटिव, सो यू विल सबट्रैक्ट दिस। ओके, तो 8 - 1 what will come 7, 4 - 1 what will come 3, 8 - 6 what will give 2, and the bigger sign of positive, so then here will become positive. And also you are going to reference point to the right side, you are going to reference point to the right side, मतलब आप reference point के right में जा रहे हो, इसीलिए साइन कौन सा यूज होगा, मैंने क्या बताया था, जब आप राइट जाते हैं तो डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस। यानी कि K2 के रिस्पेक्ट में एवरेस्ट की हाइट कितनी है 237, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 237। ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन था बेटा, फर्स्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर लो। जैसे देखो फर्स्ट ऑफ फिफ्थ, मैं बता देती हूँ फर्स्ट ऑफ फिफ्थ। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका, ये मैं जो बता रही हूँ अभी तक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आया होगा मुझे लगता है। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लो बेटा। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। मतलब आपको यहाँ से लेफ्ट जाना है या राइट, ये पहले आप चेक करेंगे। आप राइट जा रहे हैं मतलब आंसर में पॉजिटिव होगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसलिए इसके आगे का साइन पॉजिटिव होगा, इसके आगे का साइन नेगेटिव होगा। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो इसको डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस करने के बाद आप राइट जा रहे हैं इसीलिए पॉजिटिव में आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज सेइंग द हाइट ऑफ माउंट एटना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, द हाइट ऑफ माउंट एटना। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 0 पॉइंट। अब कह रहा है अब ये आपका 0 पॉइंट है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ फिफ्थ। इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ फिफ्थ। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट और फिफ्थ। क्या कह रहा है, एवरेस्ट किसकी, माउंट एवरेस्ट इज द 0 पॉइंट, ठीक है, ये आपका 0 पॉइंट है। इसकी हाइट कितनी है, +8,848, और इसकी हाइट कितनी है, -3263, ठीक। क्या करेंगे आप, -8 - 3 5, 14 - 6 8, 7 - 2 5 एंड 8 - 3 व्हाट विल कम 5। आप किधर जा रहे हो बेटा, ये है आपका एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट से आपको जाना है एटना, पूरी लाइन में देखो, ये है आपका एवरेस्ट, और एवरेस्ट में एटना जाने के लिए आपको राइट जाना पड़ेगा या लेफ्ट, किधर जाना पड़ेगा, राइट या लेफ्ट। हमको एटना जाना है, एटना जाने के लिए हम किधर जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट जाने के लिए लास्ट में आंसर में क्या होगा, माइनस। इसी माइनस सिंबल से हमें क्या पता चल रहा है, वी आर गोइंग टू द लेफ्ट ऑफ साइड, ठीक है। माइनस सिंबल इज डिनोटेड दैट वी आर गोइंग टू द लेफ्ट ऑफ साइड, ठीक। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 you will solve self, okay. Now I am explain the question number 2, that is a similar of question number 1, ठीक है। देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको एक रोड दी गई है, ये सारी क्या है, रोड, ठीक। रोड के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, आपको कह रहा है डिस्टेंस ऑफ हैदराबाद फ्रॉम बेंगलोर। देखो ये है बेंगलोर, ये व्हाट इज दिस, बेंगलोर एंड दिस इज हैदराबाद। आपको इसकी डिस्टेंस पूछा है, तो बेंगलोर से हैदराबाद की डिस्टेंस यही तो है। आप क्या देख रहे हो, यहाँ है बेंगलोर, बेंगलोर में 190, पहले बेंगलोर से आप अनंतपुर गए, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 190। जब अनंतपुर से बेंगलोर गए तो कितनी डिफरेंस है, 300, मीन्स ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 490, और आप राइट जा रहे हो, इसीलिए आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जैसे है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ नागपुर। डिस्टेंस ऑफ नागपुर, ये बेटा ये आपका क्या है, नागपुर फ्रॉम जबलपुर। ये देखो जबलपुर से हमें किसकी डिस्टेंस बतानी है, जबलपुर, ये आपका है जबलपुर। जबलपुर से हमें किसकी डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस ऑफ नागपुर फ्रॉम जबलपुर, ये आपका है जबलपुर। जबलपुर से आपको नागपुर की डिस्टेंस बतानी है। यहाँ से आप यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट में आ रहे हैं, ठीक। तो लेफ्ट में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -105 एंड -135। इन दोनों को आप क्या करेंगे, देन negative and negative equals to you will add, then here will become 240 and minus the bigger number of sign is minus, so here will become negative। and also you are going from Jabalpur to left, जबलपुर से आप कहाँ जा रहे हो, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट जा रहे हो, इसलिए इसका साइन क्या है, माइनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। I think you can do it, you will have no any doubt, and if you have any doubt then you can query and you can confirm your doubts on my personal WhatsApp, okay. Then your question number 3 and 4. Question number 3 is beta opposite. What is opposite? And question number 4 is reciprocal, ठीक है। You know that reciprocal has various meaning. What is the next meaning of reciprocal? Multiplicative inverse, ठीक है। आप रेसिप्रोकल को बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से भी जानते हो, ठीक है। अपोजिट को आप किसके नाम से जानते हैं, अपोजिट को आप अदर नेम से जानते हैं, जिसका नेम क्या है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 आप पहले देखो, एडिटिव इनवर्स कैसे करना है। एडिटिव इनवर्स मीन्स बेटा जो आपका साइन है उसके साइन का एडिटिव लेना है, ठीक। सपोज दैट यू हैव -3, तो -3 का आप नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गिव +3, ठीक है। सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज +3। इफ यू हैव टू फाइंड द +13, additive inverse of +13, then you will write the answer additive inverse of +13 equals to -13, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे लिखना कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन डालेंगे आप ऐसे राइट करके लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ +13 इक्वल टू -13, ठीक। कॉपी में ऐसे ही करना है बच्चों, सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करना है, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। नीट एंड क्लीन, ओके। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज सेइंग, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स किसी भी नंबर से अपॉन कर देना, किससे बेटा, 1 से। सपोज दैट इफ यू हैव क्वेश्चन 1, ठीक है,
तो व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 8? 1/8, ठीक है। क्या कर रहे हो आप? 1 को, उस नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हो? 1 से। सपोज दैट 8 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको करना बस इतना ही है, 1/, कर देना है। क्या करना है? 1/। लास्ट में बेटा आप आंसर को चेक कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप आंसर को चेक करते हैं तो आपके क्वेश्चन का और आंसर का मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाता है? 1 के। देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? 1 = 1। सो यू कैन चेक दैट RHS = LHS, ठीक है। RHS = LHS। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या करना है? 1 से अपॉन, ठीक। कोई भी नंबर है तो आप उसको क्या कर देंगे? 1 से अपॉन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बेटा साइन नहीं चेंज करना है। जैसे -13 है तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? -1/13, ठीक है। लेकिन एडिटिव में वही अपॉन नहीं करना है, केवल साइन चेंज करना है, ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको भी सॉल्व कर लेना। 5 और 6 आप जानते हैं बेटा प्लस और माइनस का है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यू विल कैन डू इट। सपोज दैट इफ you have a question +18, 218 and +36, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, here will the bracket open and it will give, so here will come answer 6 and 14, 3 and 1 4 and 1 5, ठीक है। 254, ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर। इट इज़ हाउ इट विल कम, it will come by the rule of sign. What is the rule of sign? That negative and negative equals to positive, positive and positive equals to positive, positive and negative gives out negative, negative and positive gives out negative, means opposite signs. What signs? Opposite signs always give the negative, ठीक है। opposite signs give the negative and same sign, what sign? Same sign always give पॉजिटिव, ठीक है। सेम साइन ऑलवेज गिव पॉजिटिव एंड अपोजिट साइन ऑलवेज गिव नेगेटिव। नोट दिस इन योर फेयर कॉपी, ठीक है। तो ये था रूल ऑफ साइन। इसी साइन के रूल से हम क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सपोज दैट इफ यू हैव अ क्वेश्चन 314, ठीक है, +314 माइनस या प्लस -14, ठीक। देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल गेट नेगेटिव, पॉजिटिव and -14, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हाट विल यू गेट? नेगेटिव। देन here will come 300 and the sign will also come the greater number. What is the sign of greater number? Positive, so here will come +300, ठीक। It is your answer. Understand now? I think you understand because you are read this type of question in your previous class, and if you have any doubts then you can consult with me, okay. The next number question is multiply and divide. Question number 6. Suppose that if you have a question +13 into -12, okay. Then in this type of question beta you will do the divide and multiply of digits and you will do the divide of signs, multiply or divide of signs also, ठीक है। The positive and negative will give negative, positive and negative multiplication of positive and negative, what will give multiplication of positive and negative? Negative. 12 3s are 36, 36 of 3 carry 6 and carry 3, 12 1s are 12, 12 and 3 15, so the answer will come -156. Understand? And the one type of question is divide. You have a question +104 divided by +8, या सपोज दैट -8। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये डिवाइड होकर आपको क्या देगा? नेगेटिव। एंड 8 1s are 8, here will come 2, 8 3s are 24, so the answer will come -12। वैसे भी आपको पता है 12 8s are 104, ठीक है। सीधे आप डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 इफ यू हैव। देन sorry students, here will come 3 12 13 8s are 8 3s are 24 ना, तो here will come 3, तो 13 8s are 104, 12 8s are 96 and 13 8s are 104, so the answer will come -13, okay. Understand? If you have any doubts then you can consult with me, okay.
So the next you have to solve the question number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now the next number question is question number 7. 7 is you have to solve the fill in the blanks. It is the question of fill in the blanks. If suppose that you have question plus 3 plus minus 7 equals to negative 7 plus you have a box. ठीक, you have a box. Here are negative 7, here also negative 7, plus sign, plus 3 here, and here a plus 3 is missing, so the always here will come positive 3. अब देखो बेटा इसको आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं. प्लस 3 यानी पॉजिटिव 3, पॉजिटिव या नेगेटिव 7, then here will come negative 4. Okay, here negative 7 plus 3, negative 7 and plus 3, negative 4. Is the LHS and RHS is equal? Yes, LHS and RHS are also equal, so you is your right answer. I think you can do solve the fill in the blanks, and if you have any doubts then you can contact me. Okay, now the question number 8. Question number 8 is beta simplify. Question number 8 is simplify. Okay, to solve the question number 8, you will have to understand the rule of Bodemas. When we solve the Bodemas rule, we know that the first letter is start from the bracket. How many types of bracket? Who will tell me how many types of bracket? The first bracket is bar bracket, and the next bracket is curly bracket, and then small bracket, and the next bracket is square bracket, and the next bracket is curly bracket. There are 4 types of bracket. What is this? There are 4 types of ब्रैकेट. जब ब्रैकेट बेटा सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? बार ब्रैकेट. फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट. इस स्मॉल ब्रैकेट को हम फर्स्ट ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. एंड एक और नाम होता है जो मैंने आपको बताया है, आपको उसे रिप्लाई करना है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट. ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट. कौन सा ब्रैकेट बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट. मैंने आपको बताया था ये स्क्वायर के शेप के जैसा होता है. स्क्वायर ही होता है, बीच से हम लोग कट कर देते हैं तो क्या करते हैं? स्क्वायर के जैसा लगने लगता है. देखो लग रहा है ना, स्क्वायर के जैसा लगने लगता है तो ये क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर के नाम से ही बनता है ये स्क्वायर ब्रैकेट. फिर यहाँ पे ये क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट. ठीक, तो ये था आपका ब्रैकेट. ओ फॉर आपको पता है, ओ फॉर ऑफ. ब्रैकेट के अंदर हमें क्या क्या पहले सॉल्व करना होता है? सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? डी फॉर डिवाइड. फिर एम फॉर मल्टीप्लाई. ए फॉर addition, then we'll solve the addition, and in the last we will have solve subtraction. It is the rule of Bodemas. If you will have to simplify any question, then you will follow the Bodemas rule. सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होगा? ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. You also know it, but I will revise it. Okay, so you have solved the question number 8. ठीक, I am solved the question number 6. For you I am solve the question number 6, and all question you will solve this. ठीक है. Let us solve this. Then first what I said, the first one we will solve the bar bracket. This is the bar bracket. तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे और बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज राइट कर देंगे. यहाँ पे हो गया -6 कर्ली ब्रैकेट -5 प्लस -2. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 - 2 क्या आ जाएगा? 1. सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है ना. इतने पे ही बार ब्रैकेट लगा है तो 3 - 2 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 - 1. आपका अभी ये केवल बार ब्रैकेट सॉल्व हुआ. अभी आपका स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बचा है. ठीक है. अब देखो +1 -1. ठीक है, तो +1 -1 ये क्या हो जाएगा? कैंसिल. यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? -2. क्या बचा? -2. अभी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 अंडर ब्रैकेट -6 माइनस कर्ली ब्रैकेट -5 प्लस यहाँ पे हमारे पास -2 बचा था. -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस क्या हो गया? -2. ठीक है. अभी ये कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया. कर्ली ब्रैकेट बचा और स्क्वायर ब्रैकेट. फिर -5 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट -6, फिर माइनस प्लस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस प्लस 5 और 2 7 यानी -7. सो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आया? -7. कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आया? -7. अब ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा. माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. अब ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस -6
माइनस माइनस प्लस 7, कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट बचा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 + 7, -6 + 7 क्या आता है बेटा, +1, तो -5 और +1। ठीक है, तो -5 और +1 इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई भी बेटा आप सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपको क्या करना है बता दे रही हूँ मैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एवरी फ्लोर ऑफ 104 स्टॉकी स्काई कीपर इज 4 मीटर हाई इफ अ बैलून राइजेस 3 मीटर एवरी सेकेंड अलॉन्ग इट आउटर वॉल। ठीक, कह रहा है बेटा इसमें कि आपके पास बहुत सारी फ्लोर है। ठीक है, क्या है आपके पास, फ्लोर बनती है ना। एक बैलून को हम लोग क्या किया है, राइज किया है, ऊपर उड़ाया है, एक बैलून को ऊपर उड़ाया है, हमारे पास बहुत सारी क्या है, फ्लोर। आपने देखा होगा फ्लोर ऐसे होती है बहुत सारी। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमने जो है बैलून को जहाँ से उड़ाया वो कौन सी फ्लोर है, 36 नंबर फ्लोर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जिस फ्लोर से आपने बैलून को उड़ाया है वो 36 नंबर का फ्लोर है, और जहाँ तक बैलून उड़ के गया है वो 96 नंबर का फ्लोर है। और हर एक सेकेंड में बेटा, हर एक सेकेंड में वो बैलून कितने मीटर उड़ रहा है, 3 मीटर ऊपर पहुंच रहा है। आपको बताना है 36th फ्लोर से 96th फ्लोर तक जाने के लिए वो बैलून कितना मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। तो पहले आपको इसके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना, इसके बीच की डिस्टेंस है कितनी, टोटल डिस्टेंस है कितनी। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमने क्या बताया था, रेफरेंस पॉइंट से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 96 में से आप 36 को क्या कर लोगे, लेस कर लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, यानी उसने टोटल कितने फ्लोर को कवर किया है, 60 फ्लोर को, और वो 1 मीटर 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में वो कितना मीटर कवर कर रहा है, 3 मीटर। ठीक, तो 16 फ्लोर तक जाने के लिए उसको कितना उड़ जाएगा, 60 का, इससे कितना बैलून कितना ऊपर जाएगा, तो 60 को इसके क्या साथ क्या कर देंगे, इनटू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 मीटर। ठीक है, यानी कि 36th फ्लोर से 96 फ्लोर पर जाने में वो 180 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। एक बार फिर से समझो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि 36 फ्लोर से 96 फ्लोर पर जाने में वो कितना कवर करेगा, जबकि वो एक सेकंड में कितना मीटर ऊपर जा रहा है, 3 मीटर। तो आपने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, इनके बीच में एक्चुअल गैप कितना है आपको पता चला, 60 का गैप है। एक सेकंड में वो 3 मीटर ऊपर उड़ा था, तो 60 से आपने इसको क्या कर लिया, 3 से इंटू, तो टोटल कितना आ गया, 180 मीटर वो ऊपर जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल बी like this class, and you have to complete exercise 1.1, and most important thing, and not forget that you will have to send your attendance. Okay, and also you have to reply my questions, and my question is what will be the answer come when you will divided plus 544 to divide by plus 8. Send me the answer of this question. You have to send this answer in the comment box. Okay, thank you. My code is